Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. एक और रिक्वेस्ट रहेगी सभी स्टूडेंट से कि जो भी SBI PO मेंस एग्जामिनेशन जो कि 5 दिसंबर को होने वाला है, जो भी एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को अटेंड करेंगे उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस पोस्ट के, इस वीडियो के कमेंट में या फिर जो भी पोस्ट आपके हमारे डाली जाएगी यूट्यूब पर, उस पर अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर सकें, जिससे हम आपको एक बेटर एनालिसिस दे पाएंगे क्वेश्चंस का, राइट। उसी क्वेश्चंस के बेसिस पे हम फर्दर स्टूडेंट्स को और उसी तरीके के क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकेंगे, जिससे आपकी लर्निंग में बहुत बेनिफिट होगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 3 और 4 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, राइट। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इनके द्वारा अभी एक नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2023 ये एक असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज़ की गई, और इनके हिसाब से बताया गया कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है ना, उसका जो लेवल है वो हमें बेटर होता हुआ दिख रहा है, उसमें इंक्रीज हमें दिख रहा है, राइट। जो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज था वो 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर्स था, जिसमें हमें एक इंक्रीज देखने को मिला ऑफ 11.48 बिलियन क्यूबिक मीटर्स फ्रॉम 2022। जो 2022 में जितना था वो था 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। इससे बढ़कर अब 2023 में कितना हो गया है, वो है 449.8 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, जिसमें हमें 11.48 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का एक इंक्रीज देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, वो रिचार्ज हो रहा है। यही डाटा अगर हम पहले कुछ टाइम पहले से देखें तो बोला जा रहा था कि जो ग्राउंड वाटर है वो इंडिया में काफ़ी जगह पे डिक्रीज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सेस यूसेज ऑफ दोज पंप्स, राइट। जो आपके अंडरग्राउंड वाटर पंप्स होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी कि हर घर में पहले ही हमें देखने को मिल रहा था, और इससे जो वाटर लेवल है ना वो कहीं ना कहीं और नीचे कम होता जा रहा था। फिर जो मेजर इंक्रीज देखने को मिला इस वाटर, ग्राउंड वाटर का, वो कहाँ पर देखने को मिला? वेस्ट बंगाल में, असम में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, गुजरात में एंड बिहार में, राइट। और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात करें तो चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पर? वो हैं डॉक्टर सुनील कुमार अंबास्ट। हेडक्वार्टर रहेगा फरीदाबाद, हरियाणा में। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी रिसेंटली एक गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर्स को बनाने की बात की जा रही है, GAN। ये GAN क्या है? गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर्स। इसके लिए IDEX जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। IDEX क्या है? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, राइट। इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। इन्होंने अभी साइन किया 300 कॉन्ट्रैक्ट विद बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड एग्निट सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड इन न्यू दिल्ली,
राइट। तो क्या याद रखेंगे, IDX ने किसके साथ साइन किया, वो है एग्नेट सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी रहेगी और इन दोनों के बीच में ये भी एक कॉपरेशन साइन हुआ, या फिर हम कह सकते हैं एक डील साइन हुई, जिसके अंडर ये गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर्स को डेवलप किया जाएगा इंडिया में फॉर द वायरलेस ट्रांसमीटर्स इन डिफेंस एप्लीकेशंस। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे इसको। और याद रखेंगे ये इनका 300 कॉन्ट्रैक्ट रहेगा IDEX का। एंड पिछले 7 महीने में अगर हम देखें तो पिछले 7 महीने पहले इन्होंने 250वां कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और 9 महीने पहले इन्होंने 200वां कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले 7 महीने में 300 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें कितनी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है फ्यूचर में, राइट। इनका जो 200 कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो स्प्रिट इनिशिएटिव था, फरवरी 2023 में इन्होंने साइन किया था, राइट। और स्प्रिंट क्या है आपका, बेसिकली सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस NIIO एंड टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो IDEX है इसको लॉन्च किया गया था 2018 में विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म ऑफ को क्रिएशन एंड को डेवलपमेंट इन द डिफेंस सेक्टर। ये प्रमोट करता है स्टार्टअप्स को, इनोवेटर्स को एंड एंटरप्रेन्योर्स को टू कंट्रीब्यूट टू द डिफेंस प्रोडक्शन, राइट। ये है आपका IDEX फ्लैगशिप इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इनके द्वारा अप्रूव किया गया 1658 करोड़ रुपीज रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लान फॉर जोशीमठ। जोशीमठ याद रखेंगे, ये अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक आपका नेचुरल डिजास्टर आया था जिससे आपकी लैंडस्लाइड हो गई थी, काफ़ी बारिश हुई थी। तो ये लैंडस्लाइड से जोशीमठ में काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उस जो नुकसान की भरपाई के लिए उसको नुकसान को अब ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी लोग रहते हैं, वो एक काफ़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। तो उसकी रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए 1658 करोड़ रुपीस का एक प्लान अप्रूव किया गया, किसके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, करेक्ट। अगर जोशीमठ की मैं बात करूँ, ये है कहाँ पर, जोशीमठ ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड स्टेट में हमें देखने को मिलता है जोशीमठ, राइट। एंड इसी से याद रखेंगे दिसंबर 27 से लेके 8 जनवरी के बीच में 2023 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान देखने को मिला था हमें, ठीक है। फिर इसी के अंदर याद रखेंगे जो जोशीमठ है ना, जोन 5 में डिक्लेयर कर दिया गया, जो कि एक हाई रिस्क सेस्मिक जोन है। एंड जोशीमठ ये लोकेटेड है एंड रूट टू बद्रीनाथ एंड द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, करेक्ट, एंड गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के पास में। फिर इसी के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ पैसा वो देंगी और स्टेट असिस्टेंस कुछ पैसा वो देंगी। जैसे अगर हम बात करें सेंट्रल असिस्टेंस की, तो यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 1079 करोड़ रुपीस फॉर रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, करेक्ट। एंड स्टेट असिस्टेंस की बात करें तो स्टेट प्रोवाइड करेगी 126.41 करोड़ रुपीस फॉर द स्टेट्स असिस्टेंस। नेक्स्ट तो आप यहां देख सकते हैं जो जोशीमठ है इसको जोन 5 का डिक्लेयर कर दिया गया, दैट इज अ हाई रिस्क सेस्मिक जोन। नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। RBI एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने भी एक MOU साइन किया फॉर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, राइट, फॉर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आई रिपीट, जो ये RBI है इन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ मिलकर एक MOU साइन किया फॉर कॉर्पोरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिगार्डिंग द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। मार्क करके चलेंगे सबसे पहले, ये जो MOU साइन किया गया था, T रविशंकर जो कि डिप्टी गवर्नर है RBI के, एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिप्टी गवर्नर फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सैरा ब्रीडन, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये MOU साइन किया गया था, राइट। फिर अगर हम इस MOU की बात करें तो ये MOU इस्टेब्लिश करेगा एक फ्रेमवर्क फॉर बैंक ऑफ इंग्लैंड, ताकि वो रिलाई कर सके ऑन द RBI's रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़। इसी के साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड एक्सेस करेगा एंड रिकॉग्नाइज करेगा CCIL को एज द काउंटर पार्टी टू क्लियर एंड सेटल बॉन्ड्स एंड ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप ट्रेड्स, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे RBI ने फाइन कर दिया है बैंक ऑफ इंग्लैंड बैंक ऑफ अमेरिका को विद द पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़, ठीक। फिर इसी के अलावा CSB RBI ने अप्रूव किया प्रोमोटर ऑफ CSB बैंक टू रिटेन 26% स्टेक इन देयर लेंडर, जो कि 15% स्टेक से हायर है, जो कि RBI ने प्रीवियसली एडवाइज किया था, राइट। तो RBI ने अप्रूव किया प्रोमोटर ऑफ CSB बैंक टू रिटेन द 26% स्टेक, करेक्ट। तो ये 2-3 चीज़ से रिलेटेड मार्क करके चलेंगे।
नेक्स्ट आ जाते हैं फिर सेबी ने पोस्टपोन कर दिया लिंकिंग ऑफ स्कोर्स विद द ओडीआर पोर्टल टू अप्रैल 2024। तो सबसे पहले याद रखते हैं ये स्कोर्स ही क्या है। स्कोर्स क्या है आपका, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म। आई रिपीट, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म, राइट, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म। तो क्या था, पहले सेबी इस स्कोर्स प्लेटफॉर्म को ओडीआर के साथ ज्वाइन कर रही थी। कब कर रही थी, 4 दिसंबर तक इसको करने की बात की गई, 2023 तक। ओडीआर क्या है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक। लेकिन सेबी ने अभी इस जो प्लेटफॉर्म का जो आपका क्या कहें हम मिलना था, राइट, लिंकिंग थी, उसको भी रोक दिया है। कब तक, तो ये रोक दिया है 1 अप्रैल 2024 को। अब 1 अप्रैल 2024 को जाके ये लिंक होगा, पहले ही आपका 4 दिसंबर तक लिंकिंग होने की बात की गई थी। तो सेबी ने पोस्टपोन किया लिंकिंग ऑफ स्कोर्स विद ओडीआर पोर्टल टिल अप्रैल 2024। फिर इसके अलावा याद रखेंगे, अभी एक सर्कुलर पास किया गया था सेबी के द्वारा ऑन 20th सितंबर, एंड इसके अंदर जो मार्केट एंटिटीज है ना, उनको अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट्स ऑन स्कोर्स को सबमिट करते रहना पड़ेगा विद इन 21 कैलेंडर डेज। एंड इसी के साथ साथ जो मार्केट एंटिटीज है उनको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द स्कोर ऑथेंटिकेशन एंड फॉर एपीआई इंटीग्रेशन। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट। जब आप किसी चीज़ को, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट पर आप मैप्स को इंटीग्रेट करते हैं ना, या फिर आप अपनी एप्लीकेशन में कोई भी एप्लीकेशन में पेमेंट का फीचर लाते हैं, तो वो एपीआई प्रोवाइड कराया जाता है, राइट। तो सिमिलरली मार्केट एंटिटीज को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर स्कोर ऑथेंटिकेशन एंड फॉर एपीआई इंटीग्रेशन, राइट। तो ये मार्क करके चलेंगे। स्कोर्स की बात करें, अभी हमने देखा क्या, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म रहेगा। स्कोर्स प्लेटफॉर्म ये किसका इनिशिएटिव है, ये सेबी का इनिशिएटिव रहेगा। एंड इसको लॉन्च कब किया गया था, 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। सेबी की बात करें तो चेयरपर्सन कौन रहेंगी, मधाबी पूरी बग। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में, एंड 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पर आते हैं, HDFC सिक्योरिटीज, इन्होंने लॉन्च किया एक मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन HDFC स्काई के नाम से ऑन AWS क्लाउड। तो ये जो HDFC सिक्योरिटीज है ना, इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है HDFC स्काई। ये बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहेगा मोबाइल पे लिए, मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी इसकी बेसिकली। एंड जो लोग मोबाइल पे ट्रेड करना पसंद करते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ये ट्रेडिंग के लिए होगा, राइट। सिक्योरिटीज को आप बाय सेल कर सकते, सिक्योरिटीज को बाय सेल कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। एंड जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे रहेगी ना, वो क्या है कि ये जो HDFC स्काई आपकी ट्रेड मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन है ना, ये AWS पे वर्क करेगी, AWS क्लाउड पे वर्क करेगी, Amazon वेब सर्विस पर ये आपका वर्क करेगी। AWS क्या है, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है कि आपको सर्वर्स कहीं फिजिकली नहीं रखने पड़ेंगे कंपनी को खुद के अपने, बल्कि ये ऑन डिमांड इसको यूज़ कर सकती है थ्रू AWS अपने खुद के सर्वर्स रखती है, एंड जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से ये चार्ज करेंगी टू HDFC सिक्योरिटीज। इससे क्या होगा, जो HDFC सिक्योरिटीज है ना, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है ना, वो 50% से कम हो जाएगा, राइट। और AWS जैसे हम बात करें तो ये Amazon का क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया। GCP क्या है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये गूगल का है। Azure ये माइक्रोसॉफ्ट का रहेगा, राइट। तो ऐसे ही आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म रहते हैं। फिर बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC स्काई, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, AWS पे रहेगी, द क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट ऑफ Amazon, एंड AWS इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड ब्रॉडली अडॉप्टेड क्लाउड प्लेटफॉर्म। HDFC सिक्योरिटीज प्रोवाइड करेंगे सिक्योर एंड लो लेटेंसी ट्रेडिंग सर्विसेज टू रिटेल इन्वेस्टर्स हु प्रेफर मोबाइल ट्रेडिंग। एंड HDFC स्काई ये AWS पर बिल्ट है, जो एनेबल करेगी इन्वेस्टर्स टू एक्सेस द स्टॉक मार्केट एट अ स्केल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड। एंड इससे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट कॉस्ट है वो 50% से कम हो जाएगी फॉर HDFC सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं आर्ट रिव्यू के 2023 पावर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्ट लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर 5 इंडियंस को लिस्ट किया गया था, जिसमें से एक रहेंगे बोस कृष्णमाचारी। ये वन ऑफ द इंडिया के पेंटर्स एंड आर्टिस्ट क्यूरेटर हैं, ये केरला से बिलोंग करते हैं। एंड इनको अभी यहाँ पर पावर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्ट की लिस्ट में सम्मानित करा गया था, ठीक है। इनकी 38th रैंक रहेगी इस पर्टिकुलर लिस्ट में। और इनके अलावा अगर मैं बात करूँ, प्रतीक राजा एंड प्रियंका राजा, दयानिता सिंह, नताशा जिनवाला, ये 5 लोग हैं जिनको भी इस लिस्ट में ऐड किया गया था, जो कि इंडियंस हैं पावर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्ट की लिस्ट में। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के ऊपर। इंडिया को अभी रिसेंटली रीइलेक्ट कर लिया गया है टू IMO काउंसिल। IMO क्या है, इंडिया
इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। और इनको याद रखेंगे इंडिया को किस कैटेगरी में ऐड किया गया, कि इसकी 3 कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो इंडिया को कैटेगरी बी में यहाँ पर अभी रिसेंटली रिलेट कर लिया गया है। ये इनको किया गया ड्यूरिंग द 33rd असेंबली ऑफ द IMO। ये असेंबली कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी, लंदन यूके में हुई थी, राइट। एंड यहाँ पर इंडिया को 157 वोट्स मिले आउट ऑफ 167, ठीक है। फिर ये जो भी हमने बताया कि इनको कैटेगरी बी में ऐड करा गया, कैटेगरी बी इंक्लूड करती है 10 मेंबर नेशंस को विद द लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल सीबॉर्न ट्रेड। कैटेगरी बी की बात करें तो इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, UAE, ये सब इसके पार्ट रहेंगे, राइट। मार्क करके चलेंगे इसको। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं IMO क्या है, ये हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है। इट कंसिस्ट ऑफ 175 मेंबर स्टेट्स ऑफ IMO एंड मीट्स वंस इन एवरी 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार मिलते हैं। एंड यहाँ पे इसका मेन फंक्शन रहेगा मॉनिटर करना एंड अप्रूव द वर्क प्रोग्राम्स एंड बजट्स ऑफ IMO। ये डिटरमाइन करती है फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स एंड इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ टू द IMO काउंसिल, ठीक है। मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, चंद्रशेखर घोष। ये कौन है? ये MD एंड CEO हैं बंधन बैंक के, एंड अभी वापस से इनको रिलेक्ट कर लिया गया है टू द पोजीशन ऑफ MD एंड CEO फॉर 3 ईयर्स, राइट। एंड इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 10 जुलाई 2024 से विद इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट रहेगी। एंड बंधन बैंक के ये MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं, करेक्ट। कौन है? चंद्रशेखर घोष, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। मार्क करके चलेंगे। एंड एक और चीज़, ये 2015 से MD एंड CEO हैं बंधन बैंक के। और बंधन बैंक की बात करें तो ये 2015 में ही इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। MD एंड CEO कौन है? अभी हमने देखा, वो है चंद्रशेखर घोष। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि ट्रेन ट्रैक्स पर ना आपके एलिफेंट्स आ जाते हैं, और उससे कोलिजन होने की वजह से, ट्रेन से जब वो कोलाइड करते हैं एलिफेंट्स, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एलिफेंट्स की डेथ हो गई है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए अभी एक गजराज सिस्टम लॉन्च किया गया है। गजराज सिस्टम लॉन्च किया गया। इंडियन रेलवेज ने कई सारे स्टार्टअप्स के साथ मिलके इस गजराज सिस्टम को लॉन्च किया गया। ये गजराज सिस्टम आपका AI एनेबल रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल रहेगा, और इससे क्या होगा कि आपके ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स तक जो स्ट्रेच रहेगा, करेक्ट, अक्रॉस इंडिया, वहाँ पर जो एलिफेंट डेथ्स होती हैं ऑन रेलवे ट्रैक्स बिकॉज ऑफ द कॉलिजन, उसको ख़त्म करने की यहाँ पे बात की गई, राइट। ये जो 700 किलोमीटर का स्ट्रेच रहेगा ना रेलवे नेटवर्क का, ये रहेगा अक्रॉस असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु, करेक्ट। इस गजराज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 181 करोड़ रुपीस स्पेंड किए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है, राइट। फिर ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको पहले टेस्ट किया गया था असम में 2022 में ऑन अ पायलट बेसिस 150 किलोमीटर के स्ट्रेच पर। एंड इसके बाद काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स भी की गए हैं, एंड 99.5% एक्यूरेसी तक ये एलिफेंट्स को ट्रैक पे डिटेक्ट कर लेता है, एंड जो कॉलिजन हो से उनकी डेथ हो सकती है उसको यहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है। तो ये है गजराज सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं PCI क्या है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इन्होंने भी लॉन्च किया रिवैम्प्ड डिजी फार्म्ड पोर्टल फॉर फार्मासिस्ट, राइट। आई रिपीट, PCI ने लॉन्च किया रिवैम्प्ड डिजी फार्म्ड पोर्टल फॉर फार्मासिस्ट। इस पोर्टल से क्या होगा? बेसिकली ये एक रिवैम्प्ड पोर्शन है, पोर्टल है बेसिकली, जो भी आप फार्मेसी से रिलेटेड आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए, राइट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, स्किल्स हो गई, राइट, स्टूडेंट्स को जो भी रिक्वायरमेंट होती है अपनी सेक्टर से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा, राइट। ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन रहेगी जहाँ पर आपको इस फार्मेसी से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। एंड जो मेन एम है, जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका इस डिजी फॉर्मेट पोर्टल का, वो क्या है? टू एंश्योर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स आर इम्प्लीमेंटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस इंडिया। मतलब जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं फार्मेसी से रिलेटेड, उनको इम्प्लीमेंट करना यूनिफॉर्मली, एक जैसा अक्रॉस इंडिया, राइट। ये एप्लीकेशन हैज़ बीन एनहांस्ड विद 4 इंटीग्रेटेड सर्विसेज, जहाँ पर आप देखेंगे एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस, फार्मासिस्ट, फार्मेसी स्टूडेंट्स, फार्मासिस्ट जॉब सीकर्स, इन सबको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड द रिवैम्प्ड पोर्टल विल एंश्योर एंड द टोटल डिजिटाइजेशन सेविंग मैन आवर्स एंड पेपर। एक तो क्योंकि डिजिटल है तो सारा जो आपका पेपर वर्क होता है वो हट जाएगा, तो मतलब ये काफ़ी ग्रीन एक आइडिया है, सब कुछ आपको ऑनलाइन शिफ्ट करना, करेक्ट। तो मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाता है फिर
वैशाली रामेश बाबू, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये आर प्रगनंदा जो कि काफ़ी बड़े ग्रैंड मास्टर हैं, राइट, उन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी नाम रोशन किया है, उनकी ये बहन है और ये भी अभी 84th ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ये 3rd वीमेन बनी है जो कि ग्रैंड मास्टर बनी है इंडिया की, राइट, एंड ये पहला ब्रदर सिस्टर ड्यूओ रहेगा जो कि आर प्रगनंदा एंड वैशाली का रहेगा, जो कि अभी ग्रैंड मास्टर बने हैं, राइट। और ये वैशाली रामेश बाबू 22 साल की हैं एंड ये 84th ग्रैंड मास्टर बनी है अभी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर। इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड स्लेवरी आपकी अलग अलग तरीके की, जैसे ट्रैफिकिंग इन पर्सन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर हो गया, देन फोर्स्ड मैरिजेस हो गई, या फिर चिल्ड्रंस को रिक्रूट करना फॉर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। ये सभी टाइप की स्लेवरीज होती हैं बेसिकली, इनके अगेंस्ट, इनको रोकने के लिए एंड इनका जो इम्पैक्ट होता है हमारी सोसाइटी पर एंड बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 2 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ये भी 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड बेसिकली क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना 1984 में, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है एंड उसके दौरान जिन लोगों ने अपनी लाइफ लॉस्ट करी थी उनको रिमेंबर करने के लिए, राइट, उनकी मेमोरी में ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे या फिर नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। फिर याद रखेंगे 2 दिसंबर को 39th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी भोपाल गैस ट्रेजेडी की, करेक्ट। और फिर इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं उस गैस का नाम बताओ जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में रिलीज हुई थी, तो क्या थी, वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, राइट, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। एंड हम जानते हैं आज के टाइम पे कंप्यूटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड ये एक ऐसी, जैसे कहते नहीं थे पहले के टाइम पे, इंग्लिश इज़ ऐसी स्किल जो लोगों को आनी चाहिए और आपको जॉब मिल जाएगी। तो आज के टाइम पे कंप्यूटर एक ऐसी स्किल है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी, करेक्ट। तो 2 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, और इस बार 2023 में 23rd एडिशन था वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे का, और पहली बार वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2001 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आते हैं असम गवर्नमेंट एंड एनडीडीबी, इन्होंने साइन किया एक एमओयू फॉर हॉलिस्टिक डेयरी डेवलपमेंट इन असम। तो असम गवर्नमेंट एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये एक डेयरी डेवलप करेंगे इन असम, करेक्ट। एंड ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने टारगेटेड टू इंक्रीज द असम्स मिल्क प्रोडक्शन टू 39 लाख लीटर्स पर डे फ्रॉम 29 लाख लीटर्स पर डे। एंड ये यहाँ पर अपना असम में ही याद रखेंगे, असम में ही याद रखेंगे, ये अपना फैक्ट्रीज कह सकते हैं या फिर आप मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स कह सकते हैं, इसको सेटअप किया जाएगा, राइट, मार्क करेंगे इसको। तो असम गवर्नमेंट ने टाई अप किया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, ताकि एक पूरा एरिया सेटअप किया जा सके जहां पर आपका प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप किया जा सके, ताकि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिल सके। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है फिर आपकी बेंगलोर की केम्प गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, राइट। केम्प गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटका में। हम जानते हैं जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक के दौरान आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे आपके लैपटॉप्स, टैबलेट्स, फ़ोन्स, राइट, इनको आप एक ट्रे में रख देते हैं अलग से, ताकि उसका चेक हो सके, करेक्ट। तो सिमिलरली इस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, इसको एलिमिनेट करने के लिए एक नया सिस्टम इंडिया में लॉन्च किया गया है, वो है CTX मशीन। ये क्या करेगी, जो भी आप पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिमूव करते थे पहले हैंडबैग से, अब वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपके बैग में ही इसको चेक कर लिया जाएगा, राइट, इस मशीन के थ्रू। एंड ये वाला इनिशिएटिव, ये सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये केम्प गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया इन बेंगलोर कर्नाटका, राइट। और ये पहला एयरपोर्ट बना जहां पे ट्रायल रन किया जाएगा फॉर द CTX मशीन। चलिए, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने रिलीज किया डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट को। IDEX ये 300 कॉन्ट्रैक्ट था फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर्स। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लेड किया, बेसिकली हम जानते हैं कि अभी जोशीमठ में काफ़ी नुकसान हुआ था लास्ट ईयर, तो उसके रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लान अभी लॉन्च किया गया है फॉर 1658 करोड़ रुपीज़। देन RBI एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच में एक MOU साइन हुआ कंसर्निंग द क्लियरिंग कॉपरेशन एंड शेयरिंग नॉलेज। देन सेबी ने पोस्टपोन किया लिंकिंग ऑफ स्कोर्स विद ODR पोर्टल टू अप्रैल 2024।
2024। देन HDFC सिक्योरिटीज़ इन्होंने लॉन्च किया मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन HDFC स्काई AWS प्लेटफॉर्म पे इसको लॉन्च किया गया। देन बोस कृष्णामाचारी ये अमंग 5 इंडियंस हैं जिनको फीचर किया गया ऑन आर्ट रिव्यूज़ 2023 पावर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्ट की लिस्ट में। देन इंडिया को रिलेक्ट कर लिया गया टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल IMO पर। ठीक। देन चंद्रशेखर घोष इनको रीअपॉइंट किया गया एज MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक फॉर 3 ईयर्स। गजराज सिस्टम राइट ये इंडियन रेलवेज के द्वारा इंस्टॉल किया गया एक AI बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम रहेगा जो कि प्रिवेंट करेगा एलिफेंट डेथ्स को ऑन द ट्रैक्स राइट। देन PCI इन्होंने लॉन्च किया एक रिवैम्प्ड डिजी फार्मेड पोर्टल फॉर फार्मासिस्ट ताकि बच्चों को फार्मेसी में जो भी वो इस सेक्टर में जा रहे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, उनकी रजिस्ट्रेशन हो सके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा सके राइट। देन वैशाली रामेश बाबू ये इंडिया की 84 चेस ग्रैंड मास्टर बनी और ये R प्रज्ञनंदन जो ग्रैंड मास्टर है उनकी बहन है। इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 2 दिसंबर को, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को एंड असम गवर्नमेंट ने एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक MOU साइन किया ताकि डेयरी डेवलपमेंट की जा सके इन द स्टेट ऑफ असम और यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्शन है जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। देन बेंगलुरु के कैंप गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सेट टू बिकम द इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू इंट्रोड्यूस CTX सिस्टम फॉर एफर्टलेस स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। When was the UN International Day to Protect Education from Attack 2023 observed across the globe? तो 9 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं UN इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। करेक्ट 9 सितंबर को। एंड याद रखेंगे ये चौथा इंटरनेशनल डे था जो हमने ऑब्जर्व किया। पहला कब ऑब्जर्व किया गया था 2020 में। इसकी एक थीम भी याद रखेंगे, जस्टिस फॉर विक्टिम्स, जस्टिस फॉर विक्टिम्स। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 10 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। करेक्ट, एंड इट इज टू क्रिएट अवेयरनेस दैट सुसाइड कैन बी प्रिवेंटेड एंड टू ब्रिंग अटेंशन टू द इशू ऑफ सुसाइड एंड रिड्यूस स्टिग्मा अराउंड सुसाइड। फिर एक और चीज़, हर 100 डेथ में से एक डेथ जो होती है वो आपकी सुसाइड की वजह से होती है। ये डाटा रिलीज किया था WHO ने। ठीक है, एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एंड WHO मिलके ही इस डे को ऑब्जर्व कराते हैं। एंड यहाँ पर इसकी थीम भी याद रखेंगे एक जो है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। आई रिपीट, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की। When was UN International Day of Clean Air for Blue Skies observed across the globe with the theme Together for Clean Air? तो कब ऑब्जर्व करते हैं UN इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 7 सितंबर को। करेक्ट, 7 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इस साल ये चौथा एडिशन था आपका इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज का। और थीम क्या रहेगी? टुगेदर फॉर क्लीन एयर, ये आपकी थीम रहेगी, इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट, When was International Literacy Day observed across the globe by UNESCO? यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 8 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी। एंड इसका एम क्या है कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना एंड हमारी सोसाइटी को ज़्यादा लिटरेट बनाना, क्योंकि हम जानते हैं एजुकेशन हर व्यक्ति का राइट है एंड एजुकेटेड होंगे तो वो अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं बाय अर्निंग मनी। करेक्ट, तो 8 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 1967 में पहली बार ये डे ऑब्जर्व किया गया था। एंड इसकी थीम रहेगी प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन। When was UN International Day of Charity observed across the globe? So United Nations International Day of Charity कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो 5 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। बेसिकली जो NGOs होते हैं राइट, ये बेसिक क्या करते हैं, ये लोगों की हेल्प करते हैं। करेक्ट, जो कि नीड में होते हैं। इनके थ्रू आप या तो वॉलंटियर का काम कर लो या फिर आप यहाँ पे मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करा दो अपनी। करेक्ट, तो इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये UN इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व किया गया। करेक्ट, एंड बेसिकली मदर टेरेसा का जो वर्क था, उन्होंने जितना इसमें काम किया है, लोगों को हेल्प किया राइट, उसको ध्यान में रखते हुए जो उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, मदर टेरेसा की जो डेथ एनिवर्सरी थी 5 सितंबर को उनकी डेथ हुई थी 1979 में। करेक्ट, तब से हम ये हर साल ऑब्जर्व कर रहे हैं। करेक्ट, मतलब बेसिकली नॉट 1979 से, बट 5 सितंबर को ही इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि डेथ एनिवर्सरी होती है मदर टेरेसा की, जिनका निधन कब हुआ था? 1979 में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2013 से हमने हर साल ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी।
what was the theme of the World First Aid Day observed across the globe on 9th of September? तो थीम क्या रहेगी? थीम आपकी फर्स्ट एड इन द डिजिटल वर्ल्ड, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की। करेक्ट। इसके याद रखेंगे जो थीम का बेसिकली आज के टाइम पे जो डिजिटाइजेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ऑनलाइन वीडियोस है, इनको प्रमोट करने के लिए एंड फर्स्ट एड एजुकेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इससे रिलेटेड स्किल्स प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की जाती है। व्हेन वाज वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। Correct, and it is to raise awareness about the importance of physical therapy and the role it plays in improving the health, well-being and the quality of life of individuals across the globe. फिर यहीं पे इसकी थीम याद रखेंगे वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे की, जो कि है अर्थराइटिस एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। आई रिपीट, अर्थराइटिस एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे की। करेक्ट। और पहली बार इस डे को कब ऑब्जर्व किया गया था? 1951 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज हिमालयन दिवस, जो कि हिमालयन दिवस का या फिर हिमालयन डे का है, ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। बेसिकली याद रखेंगे ये उत्तराखंड में ज़्यादा इसको ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज 2014 में हरीश रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के, एंड इन्होंने 9 सितंबर को डिक्लेयर किया कि हर साल हम ऑब्जर्व करेंगे हिमालय दिवस। और पहला हिमालय दिवस कब ऑब्जर्व किया गया? 2015 में। करेक्ट। 2014 में इन्होंने डिक्लेयर किया था हरीश रावत जी ने, और 2015 में इससे पहली बार हमने ऑब्जर्व किया हिमालय दिवस, और जनरली उत्तराखंड में ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो 9 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं हिमालय दिवस। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट एंड अदर इक्विपमेंट फॉर अराउंड 3000 करोड़ रुपीज। दूसरा, माही, मालवन एंड मगरोल आर द नेम्स ऑफ विच प्रोडक्ट्स रिसेंटली लॉन्च्ड। तीसरा, विच इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑन द इंश्योरेंस सेक्टर। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए इन दिस वीडियो एंड इन दिस कमेंट सेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे कमेंट करें, जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सबको मैं चाहता हूँ यहाँ पे वो इन होमवर्क क्वेश्चंस को कमेंट करें। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.